A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class, from the previous few classes, we are continuously studying the chapter that is consumers equilibrium. Okay. So in this chapter, we have already discussed the many topics like what is the meaning of the consumer. After that, the topic that is meaning of the utility, features of the utility, what is cardinal utility, what is ordinal utility. Next we have discussed the what is the total utility, marginal utility. After that, law of the diminishing marginal utility. So the law of diminishing marginal utility says that the more and more unit of a commodity is consumed. So the situation is occurred when the marginal utility, after consuming more of the commodity, it starts to decline. Okay, simply it starts to decline. Okay, so after that we have started the topic that is consumers equilibrium. So consumers equilibrium in case of one commodity and the consumers equilibrium in the case of two commodities. We have discussed about all these topics. Then after that, we have started the topic that is consumer behavior through ordinal utility analysis. Okay, so ordinal utility is given by the Hicks and Allen, and ordinal utility defined as the when we give as the rank or the preferences. So in this we have discussed about the consumption bundles. Next we have discussed the budget set. So budget set is simply all the consumption bundles that the consumer can buy using his money income at the prevailing market price. So in this the two main important factors are the consumer's income and the price of the good one and the good two. So the expenditure P1 plus X1 plus P2 plus X2, it should be less than or equal to the money income of the consumer. Okay. Next we have discussed about the consumer budget constraint. After that, budget line is also called as the price line. Okay. So budget line represents the different bundles that the consumer can purchase from his given income when the price of the commodity is given. So P1 X1 plus P2 plus X2, it should be equal to the money income of the consumer. So in this case we have discussed all the points which are on the budget line. It is the attainable as well as the points which are inside the budget line. These all are the attainable, because in this case the expenditure is less than the money income or expenditure is equal to the money income of the consumer. But the points which are rightward of the budget line or which are outside the budget line, these points are not attainable, because in that case expenditure of the consumer becomes more than the income of the consumer. Okay. Next we have started the last we have discussed the features of the budget line. After that we have started the changes in the budget line. So changes in the budget line when the only one factor is changes, we have discussed in the last class. So one factor which changes, that is income of the consumer, price of the good one and the price of the good two. So all these we have completed in the last class. In today's class we are going to start the second one, that the changes in the budget line when more than one determinant change. Okay. लास्ट क्लास में देखा था कि बस एक डिटर्मिनेंट ही चेंज हो रहा है, बट आज देखेंगे कि जो वन और मोर देन वन डिटर्मिनेंट और द फैक्टर विल बी change. First of all, we will complete this topic, and after that we will start the indifference curve analysis or the consumer equilibrium. So without getting any kind of delay, so let's get started the next topic, that is changes in the budget line when more than one determinant. Okay, so the topic is here, that is changes in budget line
when more than one determinant changes. When more than one determinant changes. Okay. बजट लाइन में चेंज हो रहा है जब एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं. ठीक है. सो इसमें कंडीशन पहली क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन प्राइस ऑफ द गुड वन and good two changes in same direction and also by the सेम परसेंटेज. ठीक है. क्या कह रहा है कि जब कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर्स इनकम इज व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड वन एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू चेंजेस. जो प्राइस ऑफ द गुड वन और प्राइस ऑफ द गुड टू दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन एज वेल इन द सेम परसेंटेज. तो क्या होगा, जस्ट लाइक अ इनकम ऑफ द कंज्यूमर की देयर विल बी अ पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट. इसमें क्या होगा, पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा. मतलब जैसे जो बजट लाइन था उसी का ही क्या होगा, वो जैसे पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा और ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक है. सो इफ देयर विल बी पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट इन द केस ऑफ फॉल इन द प्राइस. जैसे प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा दोनों की. और अगर दोनों की प्राइस क्या होगी, पैरेलल, अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा मतलब में वो फॉल हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा मतलब कि प्राइस क्या हो रही है, वो राइज हो रही है. ठीक है. सो देयर विल बी अ पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट. पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस, जब प्राइस फॉल करेगी. एंड पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जैसे आप देख लो एग्जाम्पल में ये था, क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ द गुड वन एंड गुड टू चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस क्या करेगी, फॉल करेगी. तो इट विल शिफ्ट टू दी राइटवर्ड, ए बी से A1 0. और ये लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब प्राइस क्या करेगी, राइज करेगी. सो एस A2. सो दिस इज दी फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज पैरेलल होगा क्योंकि प्राइस दोनों की, गुड वन की प्राइस और गुड टू की प्राइस, दोनों की प्राइस क्या होगी, सेम डायरेक्शन में ही चेंज होगी. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड वन एंड द गुड टू price of the good one and good two and the income of the consumer changes in same direction, and also in same percentage.
when the price of the good 1 and good 2 and income of the consumer change हो रहा है one direction में, in the same direction में, as well as also in the same percentage, और जो percentage है चेंज होने का वो भी क्या है, सेम है. तो उस केस में क्या होगा, सो देयर विल बी नो चेंजेस इन द बजट लाइन. बजट लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. इट इज़ बिकॉज द कंज्यूमर विल स्टिल बी एबल टू बाय सेम बंडल ऑफ द गुड्स. क्योंकि कंज्यूमर अभी भी वही एबल है, क्योंकि जितनी उसकी प्राइस जितना उसकी इनकम बढ़ रही है उतना ही प्राइस जो है गुड 1 और गुड 2 का भी इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज इंक्रीज बाय द 20%, ठीक है, पहले कंज्यूमर की इनकम क्या थी, 10,000 थी. अब उस 10,000 का 20% अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और प्राइस जो गुड 1 और गुड 2 की है, प्राइस भी वो क्या हो रही है, उतनी ही बढ़ रही है. तो दोनों ही साइमल्टेनियसली सेम ही हुआ, इसलिए उस केस में कंज्यूमर क्या रहेगा, सेम बजट लाइन पे ही रहेगा. ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि देयर विल बी नो चेंज इन द बजट लाइन. बजट लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. इट इज़ बिकॉज, इसलिए क्योंकि कंज्यूमर विल स्टिल बी एबल टू बाय सेम बंडल्स ऑफ गुड्स. क्योंकि अभी भी कंज्यूमर एबल है कि वो उतना ही बंडल ऑफ गुड्स को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज बाय द 20%, अगर कंज्यूमर की इनकम 20% से राइज कर रही है, सो प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेज बाय द 20%. जो प्राइस है वो भी क्या हो रही है, 20% ही इंक्रीज कर रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट है, if the price of the good 1 falls and the price of the good 2 rise. So this will be the, okay, so ये आपका क्या था पता है, ये सेकंड बी कंडीशन था. अब सी कंडीशन देखिए. सी कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन. इसमें क्या कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द गुड 1 क्या कर रहा है, प्राइस ऑफ द गुड 1 फॉल कर रहा है एंड द प्राइस ऑफ द गुड 2 राइज. ठीक है, प्राइस गुड 1 की फॉल कर रही है और गुड 2 की प्राइस क्या कर रही है, राइज कर रही है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका हम एक क्या देखते हैं, डायग्राम की बेसिस पे देखते हैं. With the help of the diagram we will understand this one. Okay, so this will be your budget line. A, B, X, Y. Good 1 and the good 2. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि the price of the good 1 falls. जैसे ही good 1 की प्राइस क्या करेगी, फॉल करेगी. तो हमारा पॉइंट बी से नए पॉइंट पे पहुँच जाएगा, दैट इज बी. यहाँ जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा ना, और कह रहा है कि प्राइस ऑफ द गुड 2 राइज. जब प्राइस गुड 2 की राइज करेगी, सो डिमांड ऑफ द दोज कमोडिटी विल बी फॉल. So we get the new point, that is A1. Now we will join this one.
ठीक है, ये आपका फॉल कर गया, ये आपका, ठीक है, सेम कंडीशन है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 2 markers so that you can easily understand it. क्या हो रहा है इसमें बेसिकली, इसमें बोल दे रहा है दैट इज द सिचुएशन इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन फॉल, गुड वन की प्राइस क्या कर रही है, फॉल कर रही है, एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू राइज. ठीक है, गुड टू की प्राइस क्या कर रही है, वो राइज कर रही है. इन दिस केस क्या हो रहा है कि जैसे ही प्राइस गुड वन की फॉल करती है, प्राइस जैसे ही गुड वन की फॉल करेगी, सो डिमांड गुड वन की क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. राइज होगी तो कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड एंड द शिफ्ट नहीं होगा, मूव करेगा. एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू राइज हो रहा है, तो गुड टू की प्राइस अगर राइज हो रही है, सो डिमांड गुड टू की क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी दिस पॉइंट, एंड देन द कर्व इज लाइक दिस, राइट. तो ये कंडीशन थी इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू राइज. सो नेक्स्ट कंडीशन दैट इज डी पॉइंट लेते हैं, डी सिचुएशन हम लोग लेते हैं. इफ द price of good one rises and price of good two falls. ठीक है, ये हो जाएगी कंडीशन. अब क्या करें, विल मेक अ डायग्राम. ओके, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. Good one, good two. So this is AB curve, मतलब बजट लाइन है. अब यहाँ पे जो चेंजेस अकर हुए हैं वो हम लोग देखते हैं क्या क्या चेंजेस अकर हुए हैं. क्या हुआ है, कह रहा है इसमें कि इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन राइज, प्राइस गुड वन की राइज होगी तो डिमांड प्राइस, अगर गुड वन की राइज हो रही है तो डिमांड गुड वन का क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा. ठीक है, फिर कह रहा है प्राइस ऑफ द गुड टू फॉल. जब प्राइस गुड टू की प्राइस फॉल कर जाएगी सेकेंड कमोडिटी की, सो द डिमांड फॉर द दोज कमोडिटी राइजेस. सो वी गेट दिस दैट इज A2 and B2. तो यहाँ पर देखो ऊपर राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, इधर ये लेफ्ट वर्ड हो गया. सो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप ये चीज देख सकते हो, दैट इज द सिचुएशन व्हेन इफ द प्राइस ऑफ द गुड वन राइज हो रहा है, जो गुड वन की प्राइस है वो राइज हो रही है, एंड द प्राइस ऑफ द गुड टू फॉल्स. जैसी प्राइस गुड वन की राइज होगी तो डिमांड कमोडिटी की कम हो जाएगी. प्राइस ऑफ द गुड टू फॉल करेगा तो डिमांड गुड वन की गुड टू की राइज हो जाएगी. सो द कर्व विल न्यू, ये जो पॉइंट है बजट लाइन के थ्रू हम लोग प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, फिर बात आती है, सो दिस इज योर changes in the budget line when only one determinant we have discussed, and the changes in the budget line when more than one determinant change. जब एक से ज़्यादा determinant क्या हो रहे हैं वो change हो रहे हैं. Next topic that we are going to discuss, that is indifference curve analysis. Okay, so we can rub all these.
The topic is here, that is indifference curve. Indifference. Indifference curve analysis. Okay, and consumer equilibrium. Indifference curve and consumer equilibrium. So जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्केल ऑफ द प्रेफरेंसेस. Scale of preferences. Okay, देखते हैं क्या है. So it refers to the ranking of the preference by the consumer. Consumer के थ्रू क्या होता है, रैंकिंग होती है किसकी, प्रेफरेंसेस की. So it refers to the ranking of preferences by कंज्यूमर. रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस, कौन प्रेफरेंस करता है, कौन रैंक प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इफ एनीवन इज कंज्यूमिंग दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कमोडिटी लाइक दी he or she is consuming the burger, pizza, if he or she has many options like pizza, burger, sandwiches and the we can say French fries. So which one of the commodities he or she has given the first rank, then the second rank, then the third rank. So it is given the ranking of the preferences by the consumer. Okay. So when a consumer rank his preference regarding different bundles, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when a consumer rank his preference, when a consumer ranks his preferences regarding different bundles. Is known as स्केल ऑफ प्रेफरेंस. उसी को क्या बोलते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं. क्या है, दैट मीन्स व्हेन रैंकिंग, इसमें क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं. ठीक है, रैंकिंग देते हैं प्रेफरेंस को. कौन देता है, कंज्यूमर देता है. किसको, रैंकिंग प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स व्हेन अ कंज्यूमर रैंक हिज प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या करता है, अपने प्रेफरेंस को रैंक प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द डिफरेंट बंडल्स. ठीक है, डिफरेंट जो भी बंडल्स उसके पास अवेलेबल हैं
उनमें से कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस देता है उसी को बोलते हैं दैट इज द स्केल ऑफ द प्रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। इसमें क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज आते हैं। ठीक है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इफ द कंज्यूमर हैज द 2 बंडल्स, कंज्यूमर के पास 2 बंडल है, बंडल ए और द बंडल बी। सो समटाइम्स कंज्यूमर प्रेफर द बंडल ए टू द बंडल बी, ए और बी में से ए को प्रेफर करेगा। कभी क्या होगा, कंज्यूमर बी बंडल को प्रेफर करेगा एज कंपेरिजन टू दी ए। और थर्ड कंडीशन क्या होगी कि जब कंज्यूमर को बंडल ए एंड बंडल बी दोनों ही बंडल उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या होगा, उन दोनों के बीच में इंडिफरेंट हो जाएगा। मतलब उन दोनों बंडल के बीच में कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि विच वन ऑफ दी दोज बंडल ही हैज़ टू कंज्यूम, बिकॉज बोथ दी we can say that both the bundles gives him the equal satisfaction. Okay, so first क्या है इसका, consumer may prefer bundle A, consumer may prefer bundle A to bundle B, और consumer may prefer bundle B to bundle A, and the third condition is consumer may be indifferent between bundles A and B. Consumer may be indifferent between bundles A and B. हो सकता है कंज्यूमर क्या हो, कंज्यूमर में भी इनडिफरेंट हो किसमें, बिटवीन ए एंड बी। इन दिस केस बंडल ए एंड बी गिव्स हिम इक्वल सेटिस्फैक्शन। इन दिस केस bundle A and B gives him or her equal satisfaction. ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन यही कह रही है कि स्केल ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, रैंकिंग ऑफ द प्रेफरेंस बाय ए कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, उनको रैंक प्रोवाइड करता है। व्हेन अ कंज्यूमर रैंक इज प्रेफरेंस रिगार्डिंग डिफरेंट बंडल्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर क्या करता है, उनको रैंक देता है। इसको बोलते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंस। सो इनमें 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। कंज्यूमर मे प्रेफर बंडल ए टू बंडल बी। कंज्यूमर क्या है, बंडल ए को प्रेफर करेगा, मे प्रेफर बंडल ए टू बंडल बी की जगह। कंज्यूमर मे प्रेफर बंडल बी, कंज्यूमर बंडल बी को प्रेफर करेगा टू बंडल ए की जगह। एंड कंज्यूमर मे बी इनडिफरेंट, कंज्यूमर क्या हो सकता है, इनडिफरेंट हो सकता है बिटवीन बंडल ए एंड बी, इन दोनों बंडल के बीच में ए और बी के। इन दिस केस बंडल ए एंड बी गिव्स हिम हर इक्वल सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इन दोनों केस में कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है।